Hi, I am Syed Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlabad Institute YouTube channel. Student, today we will going to learn about the intermediate second year physics second chapter. As you know, the name of the chapter is ray optics and optical instrument. So now our today's topic is, student, terms related to the lens. Hope you remember that we have terms related to the spherical mirror. In this same case, we have terms related to the lens. If we understood related to the terms related to the lens, then we will going to learn the rules for convex lens and rules for concave lens. If we learn the rules, then we can easily make image by that rules, with the help of that rules. So now the time to learn the terms related to spherical lens or lens, whatever you want you can tell. Okay, now what we have with us, student, terms. Yes, we have many things, like we have in mirror. In spherical mirrors we have term like pole, but here in this case, instead of pole, we will call this as optical center. Okay, and it is denoted by O. Second, we have like principal axis. Mirrors also we have principal axis. We have here radius of curvature, but here we will call it as radii. Why radii? Means radius is singular, radii is plural. So here radii of curvature. We have here center of curvature also. Next we have like focus, and we have focal length, and we have like object distance. We have terms related to lens. In terms related to the lens, we have many terms with us, like optical center, principal axis, radii of curvature, center of curvature, focus, focal length, object distance, and image distance. So these many things we have with us in spherical lenses, as we have the terms related like spherical mirrors. Student, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम सैयद राशिद है, मैं अहलेबैद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टर्म्स है हमारे पास वो आपके सामने है। जैसा कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर में टर्म्स थे रिलेटेड टू, इधर भी हमारे पास स्फेरिकल लेंस या फिर लेंस कह सकते हैं आपको। दिस मेनी टर्म्स आपको है। स्टूडेंट, आप इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द टर्म्स, फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट इज दिस? क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते। एक है ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियई ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, focal point, object distance, and image distance. These many things we have with us. Now coming to the diagrammatical representation and definition. अगर हम definition की बात करेंगे और diagrammatical representation की बात करेंगे, तो अभी पहले आप ये याद कर लीजिए, यहाँ से आता है। If you want you can copy also. Okay, from like here to here. Look at the board, student, carefully. I am drawing one line here. Okay, look at here. After drawing the line, I will going to draw two circles with me. Look at the board carefully, student. I am drawing two circles here, as you can see. This is circle 1. Okay, for circle 2 I think I will use different color marker with me. For learning the terms related to the spherical lens, we don't need any buttification or mug-up. We can remember by diagrammatical representation. हमको जब spherical lens की अगर terms की बात करेंगे तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा डायग्राम को अगर हम समझेंगे तो ऑटोमेटिक हमको समझने आ जाता। ठीक है, लुक एट हियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, ये सर्कल का सेंटर है। एम आई करेक्ट? एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एक्चुअली दिस सर्कल इज समवॉट स्मॉल। ये सर्कल थोड़ा सा स्मॉल है, बट इट इज़ नॉट टू स्मॉल दैट इट इज़ अनेबल टू सी यू। इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि आप देख ही नहीं सकते, आपको विजुअलाइजेशन आएगा। ठीक है, आप देख सकते। तो ये दो सर्कल्स है। नाउ लुक एट हियर व्हाट आई एम डूइंग केयरफुली। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, दिस पार्ट। ओके, दिस पार्ट आई एम जस्ट रबिंग डाउन, एज यू कैन सी हियर। लुक एट द बोर्ड केयरफुली, स्टूडेंट। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो हम मेनली डील करेंगे कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, सेंटर है। तो मैं एक को नाम दे दूंगा C1 और एक को नाम दे दूंगा C2। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट थिंग देख सकते हैं आप, यहाँ से C1 से लेके और ये जो बीच का बीच जो यहाँ पे मिड पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा हो गया O। ठीक है, दिस इज नथिंग बट और ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। नाउ C1 और O और C2 के बीच में जो डिस्टेंस रह गया
उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस है पोल से लेके C1 तक वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ तक थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। हमारे पास अब थोड़ा फिर से हम लिख लेंगे, वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर। सबसे पहले हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एज यू कैन सी हियर। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, द मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया, एक डेफिनेशन हमारे पास बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यहाँ पे आप C से भी डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे C नहीं रहेगा, C1 और C2 दो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रहेंगे, C1 C2, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन हम कैसा लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ स्फीयर विच कंटेन्स द पार्ट ऑफ कर्व सरफेस। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द सेंटर ऑफ स्फीयर विच कंटेन्स द पार्ट ऑफ कर्व सरफेस इज कॉल्ड, आप लिख ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दो डेफिनेशंस हमारे पास हो गए, ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। नाउ अभी मैं डिफाइन करूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को। यहाँ पे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे R1 और R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सिंपल है ये, द डिस्टेंस होप यू हैव कॉपीड ऑन। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास बताएंगे हम फोकस। ओके, फोकस किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, फोकस के लिए मैं यहाँ पे रेड पेन से डायग्राम उतार रहा हूँ, लुक एट हियर, रेड मार्कर से। यहाँ पे क्या होता है, लाइट्स आ रही, ठीक है, जो भी लाइट्स आते, लाइट्स आने के बाद एक पॉइंट ऐसा रहता यहाँ पे लेंस पे हमारे पास, जहाँ पे ऑल द लाइट रेस कन्वर्ज या डाइवर्ज होते, उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और यूजुअली फोकस कहाँ रहेगा, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फोकस रहता, जैसा आप लोगों को मिरर में था। तो फोकस को मैं वैसे डिफाइन करूंगा, फोकस ओके इज द पॉइंट वेयर द ऑल रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है, हम रिफ्लेक्टेड नहीं कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रेस कन्वर्ज, जहाँ पे भी कन्वर्ज होंगे या फिर डाइवर्ज भी लिख सकते हैं आप, कन्वर्ज इज कॉल्ड फोकस। इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। और फोकस का और एक नाम है, कम ऑन स्टूडेंट बोलिए, पढ़ लिए ना आप लोग ऑलरेडी, टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। और एक नाम क्या है फोकस का, बोलिए। और एक नाम ये है फोकस का, हम इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं। सेम केस यहाँ पे भी हमारे पास दो फोकल पॉइंट बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक बन जाएगा, तो फोकल पॉइंट हमारे पास दो बन जाते, F1 F2। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल लेंथ। ओके, सिंपल फोकल लेंथ, जैसा कि आप जानते हैं, फोकल लेंथ भी द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, उसका और फोकस का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ पे फोकल लेंथ भी दो बनेंगे, F1 और F2 स्मॉल में। वेराज यहाँ फोकस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, कैपिटल में F1, F2 रहता है, ठीक है। ये हमारा टर्म्स रिलेटेड। और क्या बोला था मैं, टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहता, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, वो तो मिरर का हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम इमेज डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारे पास थोड़े से टर्म्स हो गए रिलेटेड टू दी स्फेरिकल लेंसेस। अगर हमको ये टर्म्स पता है तो हम आगे और एक चीज़ करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे कि जैसा कि अब आपको लेंस क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस क्या है पता हो गया, टर्म्स भी मालूम हो गए कि लेंस के टर्म्स क्या है। जैसा हमारे पास बॉडी के पार्ट है, 2 हैंड्स है, 2 लेग्स है, 2 आइज है, 2 ईयर्स है, तो ऐसा भी मिरर हो या लेंस हो, उसके भी अपने टर्म्स रहते हैं या फिर पार्ट्स रहते हैं, बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा लेंस से रिलेटेड। नाउ मैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि इमेज कैसा फॉर्म होती है, हाउ द इमेज फॉर्म इन लेंस, either it might be convex lens और concave lens। concave lens या convex lens में इमेज कैसा फॉर्म होती है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो रूल्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमको इल्म होगा कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी 2 terms here like focus and focal length, and apart from the image distance and object distance,
जो आपके पास इमेज डिस्टेंस है सेम रहेगा, इंस्टेड ऑफ मिरर वहाँ पे आपको लेंस लगाना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपके पास मिरर का है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम रहेगा, इंस्टेड ऑफ मिरर आपको वहाँ पे क्या लगाना है, लेंस लगाना है, ठीक है। ये तो मैं आपके स्क्रीनों पे भी लगाया था। तो दैट्स ऑल अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू दी स्पेरिकल लेंसेस और लेंसेस। सो नेक्स्ट टॉपिक रूल्स। एज ऑफ नाउ कॉपी डाउन 1, 2, ये दो भी आप साइड हेडिंग के जैसा कॉपी कर सकते हैं, ओके। और दिस टॉपिक इज नथिंग बट, लुक एट हियर, लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट, रूल, ओके, टू ड्रॉ ray diagram for convex lens. Make sure student here actually what is the application of this rule। ये जो रूल्स हमने लिख रहे हैं या बता रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा। एप्लीकेशन ये रहेगा स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स ओनली वी कैन नो हाउ द इमेज फॉर्म्स इन लेंस। ये रूल्स के फ़ायदे क्या है, इस्तेमालात क्या है हमारे पास, ये रूल्स की मदद से हम जानते हैं कि स्पेरिकल लेंसेस में इमेज किस तरीके से बनती है, ठीक है। कमिंग टू दी रूल, तो अब सब में पहले मैं यहाँ पे आपको रूल 1 बता देना चाह रहा हूँ। लुक एट दी बोर्ड केयरफुली। रूल 1, ओके, द बीम ऑफ रे, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, द बीम ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन लेंस, ओके, आफ्टर refraction it passes through focus, okay। ये आपका रूल 1 हो गया। दिस इज नथिंग बट रूल 1। वन मोर थिंग आईड लाइक टू रिमेंबर, अभी जो हमने टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल लेंसेस पढ़ा था उसमें एक लेंस और ऐड कर ले, आप एक और टर्म ऐड कर ले, वो टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको मालूम है, जो स्ट्रेट जो इमेजिनरी लाइन हम करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से टच होते हुए जाती, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सिंपल टर्म है वो तो आपको मालूम ही है, फिर भी मैं रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर में ये भी आपको ऐड कर लेना है, ओके। नेक्स्ट लुक एट हियर। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको रूल्स ड्रॉ करना है तो सब में पहले आप अपनी तरफ से स्केल की हेल्प ले लेंगे। स्केल की हेल्प लेके आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मारिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मारने के बाद एक सेंटर आपने बना लिया, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिर आपने उसके डिस्टेंस पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपने लगा लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाता, ये F1 हो जाता, ये 2F1 या C1 कह सकते हैं हम इसको, ये F2 हो जाता, ये 2F2 हो जाता या C2 भी हम इसको कह सकते। तो ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे आपको मार्क करना है। यू हैव टू मार्क ऑन इक्वल डिस्टेंसेस। जैसा कि अगर आपने ये बीच में तो हमारे हिसाब से हमने पॉइंट लगा लिया, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। आफ्टर दैट इफ आई एम मार्किंग हियर 2 सेंटीमीटर मीन्स हियर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अब मैं मार्क करना चाह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर मार्क करना होगा। बट बेटर टू टेक मीडियम डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे पास हमने एक लाइन मार्क कर ली, ठीक है। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस थिंग्स बट यू हैव टू कॉपी रफली दिस थिंग। ये लाइन आप कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ नीचे के टर्म्स, ठीक है। कर लिए कॉपी पक्का, मिटना। सो लुक एट हियर, ये मैंने इसको रफ कर दिया। आफ्टर रविंग व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं एक लेंस बना रहा हूँ। मेक श्योर जब भी आप लेंस बना रहे हो तो आप जो है कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे भी सेम आपको रूल रहेगा कि यहाँ पे जितना डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे भी उतना डिस्टेंस आना। मार्क कर लेने के बाद आपको ऐसा इस तरीके से लेंस बनाना है। मेक श्योर ये जो लेंस आप बना रहे हैं ये बिल्कुल ही यानी कि थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। अगर आप मोटी लेंस बनाएंगे तो इट विल रियली नॉट हेल्प टू यू। तो इस तरीके से आपने लेंस बना लेना है। यू हैव टू मेक द लेंस लाइक दिस, ओके। आफ्टर दैट आपको ये हो गया आपका फर्स्ट जो मैं आपको लेंस बना दिया, ठीक है। अभी आप चाहे तो अपने हिसाब से मार्क कर ले सकते हैं। ये मैंने लेंस बना दिया है। और ये यूजुअली कौन सी लेंस है स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे हैं तो मैं कॉन्वेक्स लेंस ही ड्रॉ किया। आ गया यहाँ तक समझने, पक्की बात है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रूल को डायग्रामेटिकली अप्लाई कर रहा हूँ।
तो आपने लेंस ड्रॉ कर लिया और ये लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए, द बीम ऑफ रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये रेस पैरेलल है, जैसा कि सिंपल आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गए ना। उसके बाद आफ्टर इंसिडेंट ऑन लेंस, लेंस के ऊपर गिर गए, गिरने के बाद ऑन लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, जैसा ही उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएंगे, ये फोकस के थ्रू पास हो जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे डाला भी हूँ, ये आर से जो रेड मार्कर मैंने यूज़ किया वो रिफ्रैक्टेड रे का है, और जो ब्लू मार्कर मैंने यूज़ किया वो क्या है, इंसिडेंट रे का है। आ गया रूल 1 समझने, बहुत आसान, वेरी इजी रूल एज यू कैन सी। रूल 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपको कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ रूल 1 समझने आया होगा आपको। अब रूल 2 की हम बात करेंगे, ठीक है। द बीम ऑफ रे, ठीक है, ये लिखे थे ना हमने, बहुत आसान है। रे इंसिडेंट, ओके, ऑन लेंस, जो बीम ऑफ लेंस है, रे है, इंसिडेंट हो रहा लेंस पे, थ्रू THROUGH, थ्रू फोकस, फोकस से, ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके, सही बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए क्या होता, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख सकते हैं जो रूल 1 था हमारा, उसका क्वाइट ऑपोजिट है ये, रूल 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है रूल 2। अब डायग्रामेटिकली देख लेंगे हम। आई डोंट थिंक सो के नीड नॉट टू एक्सप्लेन मच इन हिंदी, हिंदी ज़बान में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे। लुक एट हियर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंसिडेंट लाइट, राइट लाइट को क्या कर रहा हूँ, फोकस से इंसिडेंट कर रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। जैसा ही ये फोकस से इंसिडेंट हो गया, मैं आई लिख लेता हूँ इसको, जैसा ही लेंस पे इंसिडेंट होता है, गिर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इट्स बिकम पैरेलल, ये रिफ्रैक्टेड रे है, पैरेलल हो जाता। तो ये रूल 2 है। आ रहा समझने स्टूडेंट, बहुत ही आसान है रूल 2, जैसा कि आप समझ सकते। और इसको हम और एक तरीके से भी उतार सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। यहाँ से ये जो इंसिडेंट रे यहाँ से गिर रहा, गिरते ही क्या होता है इन्हें, आफ्टर रिफ्रैक्शन इज बिकम ये रिफ्रैक्टेड। आप जिधर से चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, आपके लिए कोई वो नहीं है, बट यू नीड टू कीप रिमेंबर वन थिंग। अगर आप इधर से ड्रॉ कर रहे हैं तो इंसिडेंट का एरो इस तरीके से लगाइए, इधर से ड्रॉ कर रहे हैं तो इंसिडेंट का एरो इस तरीके से लगाइए। तो ये हो गया हमारा रूल 2 कॉन्वेक्स लेंस को लेके। तो नाउ द टाइम टू कॉपी रूल 2 फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड पे से कॉपी करने का टाइम आ गया, जल्दी कॉपी करिए। होप यू हैव कॉपीड ऑन रूल 2। उम्मीद करता हूँ रूल 2 कॉपी कर लिए होंगे। नाउ कमिंग टू द रूल 3, रूल 3 भी देख लेंगे हमें खुद, ठीक है। रूल 3 हमारे पास है, द बीम ऑफ रे, हियर रे इज नथिंग बट जो लाइट के रेस रहते हैं उसको बोलते हैं बीम ऑफ रेस इंसिडेंट ऑन लेंस, द बीम ऑफ रे इंसिडेंट ऑन लेंस थ्रू THROUGH, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पढ़ रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कम्स फ्रॉम सेम पाथ, सेम रास्ते से वापस आ जाएंगे। दैट मीन्स नो, सॉरी, हियर वी कैन से दैट रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट में लिख दिया नो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस बोल तो हमारा रूल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा बोले तो रिफ्रैक्शन के 2 शर्तें हैं हमारे पास, जैसा आप जानते हैं, एक तो बेंड होना है, मगर यहाँ पे बेंड नहीं हो रही लाइट, लेकिन यहाँ स्पीड ज़रूर चेंज होती है आपको। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते कि नो डिविएशन बोल सकते, ठीक है। रास्ता है, डायरेक्शन है, वो नहीं बदल रहा, डायरेक्शन जैसा था वैसा है, लेकिन स्पीड ज़रूर चेंज होती है इसकी। तो रूल 3 आप समझ गए, द बीम ऑफ, चलिए यार डायग्रामेटिकली समझा देते हैं। द बीम ऑफ रे इंसिडेंट ऑन लेंस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स कम फ्रॉम सेम पाथ, सेम रास्ते से आएगा। तो लुक एट हियर, ये आपका क्या है, नॉट हियर, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट, फ्रॉम आई थिंक ऑप्टिकल सेंटर, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो क्या ब्रैकेट में हम ओ लिख लेंगे। सो देखिए लुक एट हियर, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेस हमारी लाइट की जा रही है, ठीक है। जैसा ही वो रिफ्रैक्ट तो होगी, रिफ्रैक्शन तो पक्का होता, रिफ्रैक्ट होने के बाद भी सेम रास्ते से ये इंसिडेंट रेस के लिए
इसको मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से एरो मार्क करना है, क्योंकि ये बैक हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही सेम रास्ते से, और इसको मैं कैसा मार्क करूँगा, आई इस तरीके से मार्क करूँगा। आ रहा समझने स्टूडेंट? बहुत आसान है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे कि इमेज किस तरीके से बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी रूल 3। रूल 3 आप कॉपी कर लीजिए। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट दिस टॉपिक वी विल गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट पार्ट। जो आने वाला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज किस तरीके से फॉर्म होती। अपार्ट फ्रॉम दिस आईड लाइक टू रिवाइज वन थिंग, as we are learning intermediate second year second chapter ray optics and optical instruments. So what we have learned, हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। आज की जो ये पार्ट है हमारा, इस पार्ट में हमने दो मेन टॉपिक्स कवर किए जैसा कि आप जानते हैं। एक हमने कवर किया कि लेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ लेंस, ठीक है, लेंस को कैसा ड्रॉ करना है वो हमने समझा। नेक्स्ट हमने समझा था टर्म्स, ओके, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंस समझा। थर्ड हमने क्या समझा, रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड टॉपिक यही है हमारी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में रूल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने आज समझा था। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट सेशन स्टार्टिंग विथ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। So you were watching Ahlabad Institute YouTube channel. So I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Till then, take care, have a great day. Thank you.